So from today we will start the new topic. But prior to that, we will see the two-stage IF amplifier that I have already told you. This is the diagram of two-stage amplifier where you are having, that is the intermediate frequency amplifier. So it is a two-stage, that's why there are two transistors. These two transistors are coupled together by means of the transformer coupling. Then AGC is given to the input to the first stage, okay, and the IFT1 is intermediate frequency transformer 1, okay. IFT2 is intermediate frequency transformer 2. So this two-stage amplifier circuit is as shown in the diagram, that is figure 6.11, that is two-stage IF amplifier. So here these are the NPN transistors. They are coupled together by means of the transformer coupling, and AGC is given to the input to the both the transistors, the amplifiers, okay, and we will get the output at the intermediate frequency 3. CN and CN both are the coupling capacitors, okay. They may or may not be connected, that's why it is shown by the dotted line. VCC is given to the collector of the PNP transistors, okay, and the proper biasing is adjusted. So you can draw this diagram 2 to 3 times, then and then you will get the concept of this two-stage IF amplifier. So IF amplifier is the next stage of the mixer and oscillator. So mixer and oscillator is having some drawbacks, and that's why to overcome the drawback the IF amplifier is used in order to boost the IF frequency, that is intermediate frequency. Intermediate frequency is generated by the mixer's output, that is local oscillator mixer will give us intermediate frequency. That mixer is either separately excited mixer or the self excited mixer, but due to the circuitry it may have the some noise. So to remove that noise and to boost the intermediate frequency signal, that's why this two stage IF or the multi stage IF amplifier is used. But because of the simplicity, here only two stage IF amplifier is drawn. इससे ज़्यादा भी ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी एम्पलीफायर्स हो सकते हैं. तो ये हो गया आपका IF एम्पलीफायर जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके थे, यानी सर्किट डायग्राम ही बचा था. मैंने थियोरेटिकल आपको बता दिया था, बट सर्किट डायग्राम ही आपके सामने आज मैंने एक्सप्लेन किया है. सो दैट कंप्लीट्स आवर यूनिट नंबर 4. तो क्या क्या पढ़ा हमने यूनिट नंबर 4 में? आई विल स्टॉप स्क्रीन में, ओके. कहाँ से हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 4 PRF रिसीवर से. उसके बाद हमने देखा PRF रिसीवर से हमने स्टार्ट किया हमारा डिस्कशन. PRF रिसीवर यानी क्या होता है? ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर. उसमें प्रॉब्लम क्या है? ट्रैकिंग का प्रॉब्लम है, ओके. तो वो ट्रैकिंग और एक दो और प्रॉब्लम है, उसको निकालने के लिए कौन सा कंसेप्ट पढ़ा हमने? सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का. सुपर हेटेरोडाइन में होता क्या है कि एक लोकल ऑसिलेटर दिया है और मिक्सर दिया है. जो कुछ भी रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी है उसको वो लो डाउन करता है, दैट इज़ F0 माइनस Fs. तो आगे बढ़ते रहते हैं तो क्या मिलेगा हमें? F0 माइनस Fs हो गया. F0 माइनस Fs से फिर उसके बाद कौन सा ब्लॉक है? दैट इज़ नथिंग बट द IF एम्पलीफायर. IF एम्पलीफायर के बाद हमने देखा है कि डीमॉड्यूलेशन सर्किट है. कौन सा डीमॉड्यूलेशन सर्किट लगेगा? एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन सर्किट लगेगा और हमें आउटपुट मिलेगा. जो कुछ भी आउटपुट है वो लो सिग्नल लाउड स्पीकर को भी दे सकते हैं, या कौन सा भी आउटपुट डिवाइस रहता है, डिस्प्ले डिवाइस को भी आउटपुट दे सकते हैं, एंड सो ऑन. तो ये आपका सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल हो गया.
उसके बाद हमने देखा हर एक ब्लॉक डायग्राम का सर्किट डायग्राम मीन्स सबसे पहले आर एफ एम्पलीफायर का हमने सर्किट डायग्राम देखा। उसके बाद मिक्सर देखे, मिक्सर के दो टाइप्स देखे। आई थिंक देयर आर टू मिक्सर्स, वन इज़ द सेपरेटली एक्साइटेड मिक्सर, अनदर इज़ द सेल्फ एक्साइटेड मिक्सर। ओके, उसके बाद हमने देखा अभी आज हमें जो टॉपिक बचा था हमारा कि आई एफ एम्पलीफायर का मैंने आपको सर्किटरी नहीं बताया था, तो आज मैंने सर्किट आपको एक्सप्लेन किया। आई एफ एम्पलीफायर के बाद क्या है, डी मॉड्यूलेटर है। डी मॉड्यूलेटर कौन सा होता है, एम्पलीट्यूड डी मॉड्यूलेटर। उसमें हमने एक डायोड डिटेक्टर देखा। डायोड डिटेक्टर का ड्रॉबैक हमने देखा कि एक रिवर्स बायस डायोड रहता है जो कौन से सिग्नल को निकालता है, लोअर साइड बैंड के लिए रिवर्स बायस होता है, तो उसका जो ड्रॉबैक था वो भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर देखा, कल ही देखा वो। उसके बाद फिर हमने एजीसी देखा, उसमें डिलेड एजीसी देखा, सिंपल एजीसी देखा। सिंपल एजीसी यानी उसमें डिले नहीं होता है, डिलेड एजीसी में डिले होता है। और कौन सा डिले होता है, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज का। ओके, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का डिले कैसे आता है, ऑप एम्प एज अ सब्सट्रैक्टर यूज़ किया है उसमें, या डिफरेंस एम्पलीफायर यूज़ किया है, अगर आपको कल का लेक्चर रिकॉल होता है तो। ओके, उसके बाद हमने देखा कि एजीसी जो होता है वो क्या करता है, पूरे सिस्टम का गेन कंट्रोल करता है। ओके, एंड दैट गेन इज कंट्रोल ऑटोमेटिकली, दैट्स वाई द नेम इज गिवन ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर। उसमें सिंपल एजीसी में क्या है, सिंपल एजीसी में सब्सट्रैक्टर नहीं है, सिंपल डायोड डिटेक्टर लगाया है, डायोड एज हाफ वेव एम्पलीफायर लगाया है, और हमें एजीसी आउटपुट मिलता है। बट डिलेड एजीसी में सब मॉडिफिकेशंस है, जो जो है सब्सट्रैक्टर, ऑप एम्प एज अ सब्सट्रैक्टर, दैट इज़ द डिलेड एजीसी। ये हो गया आपका एजीसी। उसके बाद हमने देखा डबल कन्वर्जन रिसीवर। डबल कन्वर्जन रिसीवर में थोड़े से मॉडिफिकेशंस है, उसमें स्क्विलेंट सर्किट देखा है हमने कि वो क्विटिंग सर्किट भी बोलते हैं, कि जो कैरियर के प्रेजेंस को डिटेक्ट करते रहता है। बाद में उसमें नॉइज़ लिमिटर भी देखा हमने कल, और जो कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देखा हमने कल। ओके, so this is the overall your unit number 4, that is the amplitude receiver, amplitude amplitude modulated receiver या रेडियो रिसीवर बोलते हैं, एम्पलीट्यूड रेडियो रिसीवर। तो अब हमें देखना है यूनिट नंबर 5, दैट इज़ नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी रिसीवर, फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। यूनिट नंबर 3 में क्या देखा, फिर से मैं आपको ये यूनिट नंबर 3 में हमने क्या देखा, सबसे पहले यूनिट से स्टार्ट करते हैं हम। पहले यूनिट में देखा हमने कि कम्युनिकेशन क्या होता है, और उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि नॉइज़ की डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ नॉइज़ देखे हमने, नॉइज़ फिगर देखा, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो देखा, और डेरिवेशन देखे, न्यूमेरिकल्स भी हमने पढ़े। तो हो गया हमें यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 में हमने पढ़ा कि नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। बाद में यूनिट नंबर 3 में हमने स्टडी किया कि व्हाट आर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड ट्रांसमीटर्स, एएम ट्रांसमीटर्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एएम ट्रांसमीटर्स। वो हो गया आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा, यूनिट नंबर 4 में हमने ये पढ़ा कि एएम रिसीवर्स कैसे काम करते हैं, व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज, एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मैंने आई विल रिकॉल पैरामीटर्स, सिलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी, डबल स्पॉटिंग, इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन, ये सारे हमने पैरामीटर्स देखे हैं, वो भी आप मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वो मेरा पॉइंट छूट गया था, अभी मैंने वो रिकॉल कर दिया आपको। उसके बाद हमने पूरे यूनिट नंबर 4 में डिटेल देखा, सर्किट डायग्राम देखा हर एक ब्लॉक का। और आज हमारा लास्ट डायग्राम हमने देखा कि आईएफ स्टेज का, आईएफ एम्पलीफायर कैसे होता है एक्चुअली। ओके, उसके बाद आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 5, दैट इज़ द एफएम ट्रांसमीटर। अब एफएम ट्रांसमीटर क्या है, कि ऐसा ट्रांसमीटर जिसमें एफएम मॉड्यूलेशन यूज़ होता है। द टाइप ऑफ इन दिस एफएम ट्रांसमीटर, एफएम मॉड्यूलेशन इज यूज्ड। एंड व्हाट इज द लास्ट यूनिट, एफएम रिसीवर।
It is the type of receivers where the FM demodulation is used. So unit number 5 and unit number 6 are very much interrelated. I think I will take 6 lectures for unit number 5, means online 6 lectures, and for unit number 6 I will take again 6 lectures. So within 12 lectures of this Zoom we will complete the syllabus, and those who were absent for the previous lectures, all the lectures are uploaded on the Google Classroom. You can go through it, you can watch it, and similarly you may visit the Google Classroom, you may download the notes. So all the 4 units are completed. That is, up till now we have covered the syllabus of 50 to 53 marks, because 4 units 13 into 4 is 52. One more mark we will add, so 53 marks. Only the remaining 2 units are, means we have to see now, that is FM transmitter and FM receiver. तो FM transmitter के ही वो what are the types of FM transmitter, कैसे डिज़ाइन होगा FM transmitter का, if you can suggest anything from your side. सबसे पहले तो उसमें FM मॉड्यूलेशन चाहिए. FM मॉड्यूलेशन के लिए क्या चाहिए? कैरियर चाहिए. कैरियर कहाँ से आएगा? हवा में से तो नहीं आएगा. तो फिर से कहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है? इंफॉर्मेशन सोर्स से, कि जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल क्या करेगा? जनरेट करेगा. उसके बाद कैरियर जनरेशन करना पड़ेगा. कैरियर जनरेशन कैसे होगा? ऑसिलेटर से होगा. अब कौन सा मॉड्यूलेटर लगेगा हमें? FM मॉड्यूलेटर लगेगा. FM मॉड्यूलेटर कैसे पॉसिबल होता है? FM में देखा है हमने. ओके, तो FM मॉड्यूलेटर लगेगा. उसमें भी अब डायरेक्ट FM जनरेशन, इनडायरेक्ट FM जनरेशन, ये सारी बातें हमें स्टडी करना है. फिर FM मॉड्यूलेशन हो गया, तो फिर क्या लगेगा हमें? सेवरल एम्पलीफायर्स लगेंगे, क्योंकि FM सिग्नल को भी ट्रैवल करना है फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस टू द डेस्टिनेशन. यानी समझो दिल्ली से सिग्नल निकलने वाला है और अमरावती में आ रहा है. सो लेट अस से द डिस्टेंस ऑफ 2000 किलोमीटर्स दैट FM signal should travel or cover. So that cover means it will take some energy. उसको ट्रैवल करना है दिल्ली से लेकर अमरावती तक, और सिग्नल को ट्रैवल करने के लिए एनर्जी लगेगी. जैसे हमारे व्हीकल को एनर्जी लगती है, पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, बैटरी लगती है, एंड सो ऑन. सेम थिंग, that signal requires some energy, and that energy is provided by the several amplifiers in the cascade. तो इसमें भी वही है कि एम्पलीफायर्स लगेंगे कैस्केड में, और हमें एक प्रॉपर सिग्नल हमें मिलेगा, और बाद में लास्ट उस ब्लॉक क्या होगा? एंटीना का होगा. सो दैट इज़ योर means overall unit number 5, where we have to study the FM transmitter. In the FM transmitter there are the various blocks as per my discussion, and again in the last unit we have to study the FM receiver. FM receivers are the reverse of the FM transmitters. So both units are having same weightage, let us say 13 to 14 marks. There are no changes, means in the marking scheme we should follow this marking scheme only. Up till now any difficulty as per the previous discussion? I think today 5 students are present: Ganashyam, Nikit, Parvez, Rushabh and Shivraj Patil. Any difficulty up to this? You can reply in the chat box. और मैंने पहले के सारे वीडियो आपके गूगल क्लासरूम, सारे लेक्चर्स जो जूम के लेक्चर्स है सारे मैंने अपलोड कर दिए है गूगल क्लासरूम पे. यूनिट नंबर 4 का नोट्स मिल गया है ना आपको सब लोगों को? यू कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. यूनिट नंबर 4 का ये नोट्स मिल गया? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो आप.
डू यू गॉट द यूनिट नंबर 4 नोट्स? आपको आपको फोर्थ यूनिट की नोट्स मिल गई कि नहीं मिले? एम आई ऑडिएबल? नो वन इज रिप्लाइंग. आई थिंक वन स्टूडेंट हैज लेफ्ट द मीटिंग. ओके, ही हैज रिजॉइंड. सब लोगों ने वो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं, एडमिशन फॉर्म भर दिया ना, गूगल वाला, गूगल डॉक वाला? एनी वन फ्रॉम योर साइड इज़ रिमेनिंग? सो देखो, मैंने कल एक मैसेज किया आप लोगों को, आप सीरियसनेस बाकी लोगों को भी समझा देना उसका. अभी आप प्रेजेंट है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि जो भी ऑफिशियल वर्क होता है रिगार्डिंग डीबीटी, रिगार्डिंग एडमिशन, रिगार्डिंग एग्ज़ाम और अदर रिलेटेड वर्क, तो सारा का सारा इम्पोर्टेंट वर्क होता है. उसमें अगर एक आध 2 दिन का डिले कॉलेज में चल जाएगा, लेकिन समझो अभी डीबीटी का काम है, डीबीटी पोर्टल की कुछ डेट है या एग्ज़ाम की फॉर्म की कुछ डेट है, तो ये उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो डेट पे काम हो जाना चाहिए. अभी एडमिशन फॉर्म का मैं बोल रहा हूँ, कितने दिन हो गए अब एडमिशन फॉर्म मैंने पुटअप कर दिया है आप लोगों को, लेकिन बहुत कम लोगों ने, 7 ही लोगों ने फॉर्म भरा है. तो ये सारी बातें आगे चल के आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, क्योंकि रोल लिस्ट अगर सर ने मुझे पूछा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा, मैं 7 लोगों को ही लिस्ट आगे करूँगा, क्योंकि 7 लोगों ने ही फॉर्म भरा है. ऑफिशियली आप 7 लोग ही रिपोर्ट कर रहे हो, ऐसा उसका मीनिंग निकलता है फिर. तो आज जो प्रेजेंट है उसको, उनको मैं एक सजेशन देता हूँ कि आज आप फॉर्म भर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको. एग्ज़ाम फॉर्म, एडमिशन फॉर्म के लिए वो रेफरेंस वही रहने वाला है, क्योंकि आज ही मुझे डेटा बंड सर ने मुझे सबमिट करने को बोला है. दैट्स वाई मेनी टाइम्स आई एम पुटिंग द सेम मैसेज ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, फिल द एडमिशन फॉर्म, गूगल फॉर्म इमीजिएटली. गूगल फॉर्म है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको, आपका नाम लिखना है, प्रीवियस रिकॉर्ड लिखना है और ख़त्म बात. तो आप ये एजुकेट करो बाकी स्टूडेंट्स को. और एनी डिफ़िकल्टी अप टू दिस, वो चैट बॉक्स में किसी का रिप्लाई नहीं दिख रहा है मुझे अभी भी. एनी डिफ़िकल्टी अप टू दिस? नो डिफ़िकल्टी. Paresh is saying no difficulty. Okay. And one more thing from my side, you have to submit the assignment. अब असाइनमेंट कौन सी रहेंगी आपको? अभी हमारे 4 यूनिट ख़त्म हो गए और मैं ही बोले जा रहा हूँ, मैं ही सारी काम कर रहा हूँ. ठीक है, नो प्रॉब्लम, दैट इज़ माई ड्यूटी, आई विल परफॉर्म दैट ड्यूटी. सो व्हाट इज़ योर टास्क नाउ? मैंने इसके पहले भी बोला है कि जितने भी डायग्राम्स है, ब्लॉक डायग्राम्स, एटलीस्ट वो एक बार तो भी ड्रॉ करके गूगल क्लासरूम पे अपलोड करो एज अ असाइनमेंट. मैं पुटअप करने वाला हूँ असाइनमेंट. जितने भी डायग्राम्स है, फिर से सुन लो, जितने भी डायग्राम्स अभी तक के हमने ड्रॉ किए यूनिट नंबर 4 तक, इंक्लूडिंग ब्लॉक डायग्राम, वेव फॉर्म, एवरीथिंग, सर्किट डायग्राम, तो वो सारी की सारी आपको ड्रॉ करना है. ऊपर आपका नाम, रोल नंबर लिखना है और उसको पीडीएफ स्कैन करके अपलोड करना है आपके गूगल क्लासरूम पे. तो ये आपको परफॉर्म करना है. और थोड़ा सा पढ़ते रहो, क्योंकि डिफ़िकल्टी तभी आएगी जब आप पढ़ोगे या रेगुलरली क्लासेस अटेंड करोगे. क्योंकि मुझे नहीं पता कि बाकी के लोग क्यों क्लास नहीं कर रहे हैं. दैट इज़ देयर लुकआउट. आई एम टेकिंग द लेक्चर एज़ पर द टाइम टेबल गिवन बाय द इंस्टीट्यूट. मेरा काम हो चुका है ऑलमोस्ट, 4 यूनिट ख़त्म हो गए, 2 यूनिट बचे हैं और उसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ. गूगल क्लासरूम पे सारा मटेरियल अवेलेबल है. तो मेरा यही कहना है अब कि आपका टास्क आज से शुरू होता है. समझो कि मैं एक असाइनमेंट का मैसेज देने वाला हूँ गूगल क्लासरूम पे या आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, कि जितने भी डायग्राम्स हो गई, सर्किट डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, एवरीथिंग, वो एक बार ड्रॉ करके उसको स्कैन करो. आप कौन से भी कैम स्कैनर यूज़ करो या ऑफिस यूज़ करो, कौन सा भी स्कैनर यूज़ करो, आपका नाम लिखो ऊपर, रोल नंबर लिखो और वो अपलोड कर दो.
क्योंकि ये कल जाके हेड ऑफ डिपार्टमेंट पूछने ही वाले हैं कि आपने असाइनमेंट दिए नहीं दिए, व्हाट इज़ द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, व्हाट द टास्क दे आर डूइंग। तो मुझे ये बताने के लिए यानी प्रॉपर रिकॉर्ड मेरे पास रहना चाहिए कि ये सर मैंने इतना सिलेबस हो गया, स्टूडेंट्स ने इतनी असाइनमेंट की है। ओके, सो इट इज़ योर, मैंने आपको असाइनमेंट सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 15-20 डायग्राम्स होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और वो ड्रॉ कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। सोशल मीडिया यूज़ करते हो, ओके, नो प्रॉब्लम। वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट में वो डायग्राम वगैरह निकाल के आप नाम लिख के ऊपर पीडीएफ स्कैन करके अपलोड कर दो, बस इतना ही मेरा आपको यानी टास्क मैंने दिया आपको, ज़्यादा कुछ बड़ा टास्क नहीं दिया है। ओके, so I will end this lecture today. So from tomorrow we will go into the details of the FM transmitter, that is unit number 5. और फिर से बोल रहा हूँ, जो भी ऑफिशियल वर्क है वो क्विकली सॉल्व करो, क्विकली रिप्लाई करो। डीबीटी का है, एडमिशन का है, एसजीबीयू एग्ज़ाम का है, कुछ भी हो, ऑफिशियल वर्क है वो जल्दी से जल्दी आपने कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम आपको ही होने वाला है आगे जाके। सो दूसरा, जो भी जिन्होंने भी एडमिशन फॉर्म नहीं फिलअप किया है अभी तक, उनका ये काम है कि एडमिशन फॉर्म गूगल फॉर्म सबमिट करना है, क्योंकि वो डेटा मुझे बंड सर को फॉरवर्ड करना है। जिनके नाम आ गए उनके मैं आगे बढ़ाऊँगा, तो फिर आप देखो फिर क्या करना है। तो सर फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट देखेंगे क्या करना है। तो 7 लोगों ने फॉर्म भरा है, मैंने रिकॉर्ड देखा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको। इट इज़ वेरी इजी टू फिल अप दैट फॉर्म, देयर इज़ नो एनी वट, इट इज़ वेरी इजी फॉर्म। आपका नाम लिखना है, आपका प्रीवियस रिकॉर्ड उसमें डालना है, मार्क्स वगैरह करके, और ख़त्म। तो ये टास्क आज का हो जाना चाहिए। 7 लोगों के फॉर्म्स आ गए, जिनके आ गए वेरी गुड, आपने स्टिपुलेटेड टाइम में वर्क कंप्लीट कर लिया। जिनके नहीं आए उनके लिए बता रहा हूँ मैं। ओके, so I will end this lecture today, and from tomorrow we will start, means already we have started today FM ट्रांसमीटर्स। FM ट्रांसमीटर्स हमें डिटेल्स में देखना है। ओके, so I will end my lecture today, and tomorrow we will, on the same time we will meet tomorrow to so one topic we will discuss tomorrow and another topic on the Saturday, and we are very much, आज के पकड़ के हमारे 30 लेक्चर्स हो गए। 30 लेक्चर्स में हमने 4 यूनिट कंप्लीट किए, तो प्रॉपर स्पीड है अपना। यानी एक यूनिट का समझो 7 to 8 लेक्चर्स लगते हैं, वो उतना ही हम लगा रहे हैं फिर। और आज मैंने आपकी रिवीजन भी कर ली, यूनिट नंबर 4 की मैंने पूरा रिवाइज करके दिया आपको शॉर्ट में एकदम। पहले 10 मिनट वही किया हमने, जो प्रेजेंट थे उनको पता है, जो लेट ज्वाइन हुए वो देखो। मैंने वो ये वीडियो भी है मैं गूगल क्लासरूम पे, ये क्लासरूम का जो लाइव क्लासरूम लिया है मैंने, लाइव क्लास, उसका वीडियो आपको गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगा। ओके, ठीक है, फिर मैं एंड करता हूँ मीटिंग।